हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इन दिस सीरीज हम लोग क्या कवर करने वाला है, ये नया सीरीज होने वाला है विच इज़ नथिंग बट स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए का जो भी मैपिंग्स रिलेटेड रहता है ना, तो वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अ आइडिया व्हाट इज द मैपिंग्स इज। ओके, सो व्हाट आर द रिलेशनशिप मैपिंग इन जेपीए? ओके, so there are four types. One is one to one, second is one to many, third is many to one, and fourth is many to many. Okay, तो हम लोग ये वीडियो में ना will gonna cover this one to one mapping. Okay, in this one to one association, we can either we can either associate the mapping यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सो यूनिडायरेक्शनल क्या रहता है? सो यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन, the source entity has a relationship field that refers to the target entity. Okay, and the source entity table should contains the foreign key. Okay, अभी ये क्या रहता है ना, प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, डोंट वरी। And in bidirectional we have in bidirectional association, each entity like source and target has a relationship field that refers to each other. Okay, and target entities, the table contains the foreign key, and the source entity must be used the mapped by attribute to define the bidirectional one to one mapping. तो ये क्या है ना, ये हम लोग प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं पेंट में समझा के। सो लेट्स से वी हैव दिस एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में वी कुड हैव अ एम्प्लॉय आईडी, देन वी हैव नेम, उसके बाद एड्रेस भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। पर फॉर द एग्जांपल बीइंग, मैं ना यहाँ से एम्प्लॉय से एड्रेस ना अलग एंटिटी में रखता हूँ, मतलब अलग टेबल में। ठीक है, इफ़ आई वांटेड टू कीप इट my address in different table, so what I need to add is nothing but यहाँ पे we have employee id, employee name, and the employee address should be kept inside a different table which is address. So we could have a temporary address, permanent address of employee. Okay, and we could have a here id, okay, of this address. So this employee should be mapped with this address. Okay, means like we have one employee id 1, so it should be mapped with the address id 1 likewise. Okay, so one employee can have one address and one address could have one employee. Okay, if we have a bidirectional, if we have a unidirectional, then only employee has a address but address don't have any connection with एंटिटी एम्प्लॉय। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम में देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, गो इनटू स्प्रिंग इनिशियलाइजर। लेट्स से we could have data mapping example. Okay, and what dependency we required? First of all we required web, secondly lombok we required, and then jpa for Hibernate things, that mapping related stuff will handle by JPA, and then MySQL connector. Okay, which is nothing but MySQL driver. That's it. We're gonna start with this only. So let's download it. Let me open in folder. So you can see it has been downloaded. So I'll probably move it to my YouTube workspace so that we can have a track of it. Now अभी इसके अंदर का जो डेटा रहेगा वो पूरा बाहर कर लो, और ये फोल्डर की ज़रूरत नहीं अपने को, ये मूव मूव कर देंगे। रुको एक सेकंड, मैंने ना थोड़ा गलती किया है इसमें। हम लोग ने ग्रैडल प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई डिलीट इट, आई अगेन गो टू इनिशियलाइजर। ठीक है, यहाँ पे मैविन से लेकर करूँगा, नॉट अ ग्रैडल। ठीक है, वी गोना वर्क ऑन मैविन फॉर नाउ। ओके, वापस डाउनलोड करता हूँ। कट,
paste it to here, extract करता हूँ. Okay, इसके अंदर I'll copy the data, paste it here. ये delete कर दूंगा, ये भी delete कर दूंगा. Now let's go in our ID. You can see I'm opening a project. User Rishikesh, and then dev, and then YouTube workspace, and then mapping example. Let it load. So you can see now I have totally empty project. Okay, I don't have anything in it. Let's add database properties into a application.properties. Okay, which is nothing but Spring data source, then URL, username, and then password. Okay, and let's create a different DB. Okay, mapping DB, something like that. Okay, let's add this DDL auto. Okay, and what else we required? This two properties is nothing but Spring JPA generation DDL. True means like whenever the tables has been created, it will be logged inside a console, and whenever this is nothing but show queries is nothing but whenever we do any find all and all, at that time we're gonna get a that query should be logged inside a console. तो ये दो properties मैंने add किए. Okay, now let's start working on entities. Okay, so let's say entity, and we could have employee entity. Okay, so employee नाम देते हैं बस, entity नहीं लिखता. We need to annotate this as a entity data for all the getters and setter. Okay, now what fields I required? So let's say private int employee ID, private string employee name. ठीक है, then दिस टू फील्ड्स, ये दो फील्ड रखूंगा और उसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं. तो आई नीड टू मेक इट एज दिस field as a ID. Okay, primary key of this table, and then generated value strategy, let's say auto, means auto increment हो जाएगा. ठीक है, ID 1 2 3 ऐसा. Now let's create a address entity. Okay, here also we'll annotate this as an entity, then annotate this as a data. अभी इसमें क्या रहेगा? प्राइवेट इंट एड्रेस आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग टेम्पररी एड्रेस, और टेम्पररी एड्रेस प्राइवेट स्ट्रिंग permanent address. Okay, so these things we have. Let me just check. Yeah, permanent and temporary, these two क्या बोलते हैं, ये दो अपने पास फील्ड है एड्रेस में. एंड इन एम्प्लॉय वी हैव एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय का नेम. ज़्यादा फील्ड नहीं ऐड कर रहा हूँ टू मेक इट मोर क्लियर. ओके, इसमें भी अपने को वी हैव टू एनोटेट दिस एज अ आईडी. ऑल्सो
जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी ऑटो। ओके, नाउ अभी हम लोग कौन सा इसमें कनेक्शन करेंगे, विच इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 1 में वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल में हम लोग क्या करेंगे, बस एक ही, मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय में बस एड्रेस रखेंगे। तो व्हाट वी हैव टू ऐड इज नथिंग बट प्राइवेट एड्रेस एड्रेस। ओके, सो आर एम्प्लॉय हैज एड्रेस। और एक चीज क्या करना पड़ेगा, अपने को एनोटेशन देना पड़ेगा विच इज नथिंग बट 1 to 1 का। ओके, अभी ये यूनिडायरेक्शनल है। we have in employee we have address का thing, but in address we don't have nothing like employee। ठीक है, सो कनेक्शन सिंगल साइड है एम्प्लॉय का, बस एड्रेस के साथ, एड्रेस का कुछ लेना देना नहीं है एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, तो अभी ये तो बना लिया। व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट इज नथिंग बट वेन एवर वी हैव अ एंटिटी वी हैव टू ऑल्सो नीड टू क्रिएट अ रेपोजिटरी। करेक्ट, so let's say repository dot employee repository। ठीक है, annotate this as a repository and we have to extend as a JPA repository and we have to pass entity which is nothing but employee and their ID। Sorry, okay, now next is nothing but we have to create one more interface which is nothing but address repository, address repository। Okay, we have to extend this also with JPA repository, give the entity and then the ID field, integer। Okay, and also now what we're gonna do, we're gonna add one controller to check this flow। Okay, let's add one controller, say our employee controller। Okay, annotate this as a REST controller। Okay, why? Because we are exposing the API। Then what we required, request mapping API v1। Okay, and we have get mapping, get all employees। Correct, so public list of employee, get employees। For fetching all the employees from database, what we required is nothing but we have to auto wire repository, right? Employee repository। I'm not gonna create a service layer for now, okay? Why? Because to make it more clear so that you're gonna get a good amount of idea. That is why I'm creating all the stuff inside a uh, inside my controller only। Okay, now let's add one more endpoint which is nothing but get addresses। Okay, now so public list of address, get addresses, return। Now one more thing I need to add is nothing but auto add private address repository, address repository, and then address repository dot find all। ठीक है, इतना करूँगा
वन मोर थिंग इज नथिंग बट आई वॉन्टेड टू ऐड द डेटा, करेक्ट। अभी तो ये पूरा एम टी मिलेगा क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, तो पूरा एम टी मिलेगा। सो एक पोस्ट मैपिंग भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, टू ऐड एम्प्लॉय से पब्लिक will gonna return whatever the employee will gonna add it, that is only will gonna return it, okay, post employee. And inside this, in the request body, we're gonna accept employee object, okay. And what we're gonna do inside this, what we're gonna get is nothing but we're gonna get address employee object, okay, address plus employee object. So first of all, what we required is nothing but we have to save something, okay, we have to save the address first, okay. So let's say address repository dot save employee dot get address, okay. As soon as we stored it, we'll say address employee dot set, अपना जो सेव्ड एड्रेस रहेगा ना वो हम लोग सेट करेंगे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में। वंस दैट इज बीन डन, तो क्या होगा, ये एड्रेस जो है ना ये स्टोर हो गया, टेम्पररी और परमानेंट जिसका एड्रेस रहेगा ये फील्ड होके टेम्पररी परमानेंट, और उसका आईडी जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वेन एवर वी सेव्ड आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद सेव होने के बाद वो सेव्ड ऑब्जेक्ट हम लोग वापस ये एम्प्लॉय जो एंटिटी है ना इसमें सेट करेंगे, ठीक है, एड्रेस के फील्ड में। एंड वंस दैट इज बीन डन, व्हाट विल गोना डू, विल गोना से एम्प्लॉय repository dot save, we're gonna save this object into a database. Now whatever we're gonna get saved employee, we have to return it, okay. Now let's run our application. Before running, we're gonna create this database, okay. So I already have it, so I'll drop it and I'll show you, okay. So I had created this database. If I show you show tables, I have nothing in it, okay. Now as soon as I started running my application, you can see how many tables we're gonna create. Oh shit, एक second ना, just a second. Our application port number is already been taken. कोई नहीं, हम लोग ना ये अलग पोर्ट पे स्टार्ट करते हैं। सर्वर डॉट पोर्ट 8081, okay. Let's try running it again. Okay, now our application is launched. So you can see now, if I show you the tables, we got two tables, employee and address, okay. Inside employee, we're gonna see it, okay. And this is nothing but sequence is nothing but this two table is been created by Hibernate to maintain the auto generation logic, okay. So if I show you the employee, we have employee ID, name and this address ID, okay. अभी ये क्या है,
इज नथिंग बट वी हैव रिलेशनशिप, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एड्रेस के साथ है, तो एड्रेस के इसमें जो भी आईडी बनेगा that will be gonna map with the employee object. So let's see in our postman. ठीक है, so in postman I'll delete this. If we try, second, request not found. Why? Let's create one. Say http colon localhost 8081. If we try to fetch all the employees, okay, API slash v1 slash employees. अभी APIs is nothing but this one. ठीक है, APIs v1 and then add employees. Okay, if we try to fetch it, we're gonna get nothing in it. Correct, we're gonna get null. Okay, means like empty object. Now same चीज मैं copy करता हूँ, duplicate करता हूँ, and instead of employees we could have addresses. ये फाइंड करूंगा तो I could get a empty. Okay, now I'll try to post. Okay, API v1 employee. Okay, API v1 employee, and we have to pass employee object. Okay, so we have test as a name. Okay, let's say Rishal, and then address is temporary is Delhi and permanent is New Delhi. Okay, so I need to, just a second, I need to change the key name. Okay, now if I try to post it, so you can see our employee object got ID which is 1, and then address also been stored as ID as 1. Okay, तो क्या हुआ देखो, ये बिहाइंड द सीन में समझाता हूँ. कंट्रोलर हिट हुआ, एम्प्लॉय कंट्रोलर, where it fetches the address, saved it first. Okay, and then employee के object में it stored the saved object. Okay, and then employee save हो गया. ठीक है, now in database I'll show you. So you can see in our address book we have address book ID 1, permanent and temporary address, and then if we fetches in our employee, you can see we have employee ID 1, name, and then ये field जो है ना, which is nothing but mapping maintain करता है. Okay, so ये जो है ना address book का primary key is become a foreign key in this employee ID, employee table. ठीक है, तो ये चीज़ है. This is nothing but unidirectional. So I'll show you unidirectional कैसे है. मतलब one single side direction. So अगर if I fetch employee, okay, get all employee, so you can see I'll, with the help of employee also I'm getting a address thing. Okay, but if we try to fetch address, so address में तो मेरे को employee का object नहीं मिल रहा है, तो ये unidirectional हो गया. ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज हम लोग ने यूनिडायरेक्शनल का देख लिया. ठीक है, नाउ विल मूव टू द बाय डायरेक्शनल थिंग. ठीक है, सो बाय डायरेक्शनल में फर्स्ट टाइप कौन सा रहता है, मॉडलिंग विथ फॉरेन की. ओके, मतलब क्या रहता है पता है क्या, सेम चीज है. जो हम लोग यूनिडायरेक्शनल लेगा ना, देखो यहाँ पे इसका आईडी इसमें छप गया है, राइट, करेक्ट. देखो इफ यू हैव अ एम्प्लॉय एंड देन एड्रेस, ये जो एड्रेस का आईडी है वील गोना हैव इट इनटू अ एम्प्लॉय टेबल. ठीक है, तो सेम चीज़ है, बस
अपने को ड्यूल डायरेक्शन मैपिंग करना पड़ेगा, तो वो कैसे करने का वो बताता हूँ। चलो लेट्स गोना जंप इन टू द ड्यूल डायरेक्शनल, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू मेक अ चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड एम्प्लॉय में वी हैव टू हैव इट कैस्केड एंड देन ऑल, ओके। और एक एनोटेशन देना पड़ेगा विच इज नथिंग बट जॉइन कॉलम, okay, and then I need to pass name as address underscore id and reference column is nothing but this, okay। इतना दे दिया। ऑल्सो एड्रेस के इसमें भी जाऊंगा एंड वहां पे भी चेंज करूंगा। what we need to add is nothing but private employee एंड यहाँ पे भी मेरे को क्या देना है, 1-to-1 मैपिंग देना। एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, डोंट क्रिएट योर मैपिंग ऑल्सो, मतलब मैं क्या बोलूंगा, एड्रेस बुक को बोलूंगा क्या आप खुद से मत बनाओ, ऑलरेडी एम्प्लॉय ने बना चुका है जो मैपिंग का चीज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैप बाय, जो एम्प्लॉय में दिया है ना ये वाला फील्ड, आई गोना पास इट हियर। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है क्या, मैं एड्रेस बुक को बोल रहा हूँ क्या आप मैपिंग के रिलेटेड मत देखो, फिलहाल तो मैपिंग के रिलेटेड एम्प्लॉय ने देख लिया है, ठीक है। वेयर वी हैव 1-to-1 मैपिंग, दिस जॉइन कॉलम, एंड जॉइन कॉलम में वी आर स्पेसिफाइंग कौन सा प्राइमरी आईडी है इसमें, जो विच इज नथिंग बट दिस एड्रेस, ठीक है। सो ये हो गया यो बाई डायरेक्शनल का टाइप, ठीक है, बाई डायरेक्शनल फॉरेन की वाला मॉडल, ठीक है। तो अभी देखते हैं रीरन करके अपना टेबल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ड्रॉप इट, ओके, ड्रॉप करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्रिएट करता हूँ, शो यू, सो वी हैव नो टेबल इन इट, ओके। एप्लीकेशन व्हाट वी हैव टू ऐड इज रीरन करो, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। चलो टेबल्स देखते हैं। सो वी हैव 4 tables, okay, 2 tables for our entity, 2 table for our hibernate things, okay. So you can see same thing we have, okay, employee id, name and then address, but if you see in address we don't have anything, okay, same जैसा 1-to-1 मैपिंग है, पर एक चेंज क्या होगा, यूनिट बाई डायरेक्शनल का, whenever we fetches our address we'll gonna get a employee object also, और whenever we get a employee object we'll gonna get a address ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक चीज एड ऑन हो गया। तो लेट्स ट्राई एडिंग अ डेटा, ठीक है। सो लेट्स से सेम डेटा हम लोग ऐड करेंगे, ओके, वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर नाउ, ओके, लेट्स ऐड इट। सो यू कैन सी इन टेबल, आई शो यू इन टेबल, देखो यहाँ पे वी हैव आईडी, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय का नेम एंड देन एड्रेस बुक का आईडी। In address we have ID 1 न्यू दिल्ली एंड देन दिल्ली। तो इसका जो आईडी है ना ये यहाँ पे मैप हो चुका है, ओके। नाउ यहाँ पे देखते हैं अपने को रिस्पॉन्स में ना, ये देखो थोड़ा ना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस का है, वापस उसके अंदर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ड्रॉबैक है, इस पे आता हूँ मैं। नाउ इफ आई ट्राई टू गेट ऑल द एम्प्लॉयज, मेरे को ना एरर दे रहा है, ओके। एरर क्या दे रहा है ना वो भी मैं समझाता हूँ क्या है एरर ये, ठीक है। इट ट्राइज टू फेच ऑल द records but cannot call send error, while trying to resolve the exception, third,
तो ये लेफ्ट ज्वाइन करके इट ट्राइज टू फेचेस। अभी इसमें क्या हो गया पता है क्या सीन? वेन एवर ये ना पूरा इन्फिनिटी लूप में चला गया। अभी मैं बताता हूँ, रुको। क्या हुआ पता है क्या? इट ट्राइज टू फेच द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या है? एड्रेस है। एड्रेस में क्या है? वापस एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या है? एड्रेस। तो ये क्या है? इन्फानाइट लूप है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू इज वी हैव टू ऐड इज नथिंग बट वी हैव टू ऐड वन प्रॉपर्टी विच इज नथिंग बट JSON ignore property, and we have to specify which value to ignore. Okay, so in employee object what we have to ignore is nothing but इसके अंदर का एम्प्लॉय जो दिया है ना वो यहाँ पे इग्नोर में डाल दो। ओके, और सेम चीज ये कॉपी करो। यहाँ पे जो एड्रेस फील्ड है ना वो एड्रेस फील्ड में बता दो, क्या वो भी यहाँ से इग्नोर करो। इट्स नथिंग बट ये एड्रेस फील्ड वी हैव टू इग्नोर। ठीक है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो एम्प्लॉय में आई एम सेइंग क्या इसके अंदर का जो एम्प्लॉय फील्ड है ना वो इग्नोर करो। देखो यहाँ पे, और एड्रेस में मैं बोल रहा हूँ क्या जो एम्प्लॉय के अंदर का ऑब्जेक्ट एड्रेस करके है वो यहाँ पे इग्नोर करो। यू गॉट इट? थोड़ा उल्टा है, ठीक है। जो एड्रेस के अंदर का एम्प्लॉय है वो मैंने उधर स्पेसिफाई किया एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर का एम्प्लॉय आई हैड स्पेसिफाइड इट हियर। ओके, तो की का नाम देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कुछ डाउट रहेगा ना तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं और थोड़ा प्रिसाइजली एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ लेट्स री रन इट। कुछ चेंज नहीं होएगा, बस हम लोग ने इग्नोर प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया अपना एप्लीकेशन। तो इफ यू फेच ऑल द एम्प्लॉयज यू कैन सी नाउ वी गेटिंग आर एम्प्लॉय एज वेल एज दिस एड्रेस। ओके, एंड एड्रेस के अंदर वापस एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, देखो। तो वो लूपिंग अब जो था ना कंटिन्यूस लूपिंग, तो वो चला गया, ठीक है। अभी इफ वी फेच द एड्रेस, तो प्रीवियसली देखो एड्रेस में बस एड्रेस ही मिलता था, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता था, ठीक है। बट नाउ वी हैव अ बाई डायरेक्शनल मैपिंग वेयर we're gonna get address book as well as inside that we're gonna get a employee object also। तो बाई डायरेक्शनल का ये फीचर अपने को यूज होता है, ठीक है। पहले क्या आता था? बस यहाँ पे एड्रेस का इतना ही 3 फील्ड ही आता था, बट नाउ पूरा बाई डायरेक्शनल हो गया। मतलब एम्प्लॉय में एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एड्रेस में विल गोना गेट अ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ नाउ यू कैन सी इन एम्प्लॉय वी सेइंग दैट एड्रेस बुक का जो है वो आईडी एम्प्लॉय के टेबल में रखो। अभी मैं बोलूँगा नेक्स्ट वाले यूज केस पे आएंगे हम लोग, विच इज नथिंग बट बाई डायरेक्शनल ही बट शेयर्ड प्राइमरी की। मतलब क्या रहेगा? ये जो एम्प्लॉय का प्राइमरी की है ना, एम्प्लॉय एंड देन नेम, आईडी एंड नेम, और यहाँ पे ना एड्रेस, परमानेंट, टेम्पररी और एम्प्लॉय का आईडी। मतलब क्या होगा? मैपिंग अभी उल्टा होगा। तो उसके लिए कैसे करें तो वो चेक करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स जंप इन टू द कोड अगेन। साइड दिस। ओके, नाउ अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैप्ड बाय, मेरे को किसका देना पड़ेगा? नथिंग बट दिस एम्प्लॉय। ओके, और ये जो रेफरेंस है ना ये जॉइन कॉलम का, ये हटा दूंगा मैं, यहाँ से यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कैस्केड, सॉरी, कैस्केड ऑल। ओके, एंड
ज्वाइन कॉलम में मैं बोलूँगा किसको ज्वाइन करने का, ये एम्प्लॉय आईडी को। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एड्रेस बुक आईडी आई प्रॉब्ली हैव इट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। और एक चीज है, अभी देखो यहाँ पे ना मैप बाय किस पे लिखा है मैंने, तो मैं एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ क्या अभी तू मत देख, तू मैपिंग के रिलेटेड मत देख, एड्रेस बुक में मैं कर लूंगा मैपिंग जो करने का है। तो मैं बोल रहा हूँ एड्रेस बुक के एम्प्लॉय वाले फील्ड में वी ऑलरेडी एडेड द मैपिंग। ठीक है। सो वी आर स्ट्रिक्टली प्रोवाइडिंग टेलिंग दैट एम्प्लॉय डोंट क्रिएट मैपिंग ऑन योर ओन। एड्रेस बुक वुड बी सॉरी एड्रेस एंटिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द मैपिंग। ठीक है। तो ये कैस्केड जो है ना अभी मेरे को थोड़ा एरर दे सकता है एम्प्लॉय में, तो ये मैप बाय भी लिखता हूँ और साथ ही में कैस्केड भी लिख देता हूँ। ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉप और डेटाबेस। अभी ये ड्रॉप में फ्रिक्वेंटली कर रहा हूँ, पर आप मत करना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, नहीं तो बहुत इशू हो जाएगा। ये बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है। आपका एक बार बन जाएगा तो ड्रॉप मत करना आप। ठीक है। तो यू कैन सी वी हैड चेंज द फ्लो, उल्टा कर दिया। ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एड्रेस बुक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ मैपिंग, एम्प्लॉय वुड नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट ये फिर भी बाई डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि वी हैव अ एड्रेस फील्ड ईयर एंड एड्रेस में भी वी हैव अ एम्प्लॉय। बाकी तो कुछ चेंज नहीं होएगा, तो कीप इट एज इट इज। ठीक है। ओके। इतना तो चेंज कर लिया। अभी कंट्रोलर में ना थोड़ा चेंज आएगा अपने को। कंट्रोलर में ना अभी क्या बोल रहा हूँ, एड्रेस बुक मैपिंग करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या सेव करना पड़ेगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एंड देन एड्रेस बुक के इसमें सेट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पहले एड्रेस सेव कर रहा हूँ एंड देन एम्प्लॉय सेव कर रहा हूँ। अभी मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेव द एम्प्लॉय एंड देन उसका मैपिंग जो हो जाएगा ना मेरे को वो करना पड़ेगा। तो लेट्स मेक अ चेंजेस, ये थोड़ा मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे दूसरा चेंजेस लिख देता हूँ। ठीक है। इट्स एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, I'll say employee object. ओके। और बोलूंगा इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल saved employee p, what I need to add is nothing but employee dot set sorry get address dot set employee। ओके। एड्रेस के अंदर ना मैं एम्प्लॉय कौन सा जो सेव्ड वाला एम्प्लॉय है ना वो सेव कर रहा हूँ। ओके। ना I'll say address book repository dot save employee डॉट गेट एड्रेस। ओके। एड्रेस स्टोर करूंगा, सेव एड्रेस। ओके। वंस आर एड्रेस इज बीन स्टोर्ड, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय में डॉट सेट एड्रेस, जो सेव्ड एड्रेस है ना वो सेट कर डालो क्योंकि अपने को एम्प्लॉय रिटर्न करने का। ठीक है। एंड देन यहाँ से रिटर्न एम्प्लॉय। अभी मैं समझाता हूँ, रुको, डोंट वरी। अभी मैं यहाँ पे ना विल गोना गेट दिस पेलोड। कौन सा पेलोड मिलेगा अपने को, ये वाला। ठीक है। नेम एंड एड्रेस। अभी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस सॉरी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा डेटाबेस में। ठीक है। कैसे सेव होगा, से शो टेबल्स, अभी रुको बना नहीं है टेबल्स, मैं बताता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय का जो ये ऑब्जेक्ट है रिशाल, एंड देन आईडी सेव हो जाएगा, सेव्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा। और उसमें उसके बाद क्या कर रहा हूँ, ये वाले एम्प्लॉय में डॉट गेट एड्रेस डॉट सेट एम्प्लॉय, जो सेव्ड एम्प्लॉय है ना वो सेट कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, एड्रेस रेपोजिटरी डॉट सेव एम्प्लॉय डॉट गेट एड्रेस, तो एड्रेस भी स्टोर हो गया और एम्प्लॉय में सेट कर रहा हूँ।
ठीक है। और एड्रेस बुक जब भी सेव करता हूँ ना, तभी इसमें ना कैसे है, देखो ऑलरेडी मैंने एम्प्लॉय डॉट गेट एड्रेस डॉट सेट एम्प्लॉय ऑलरेडी कर लिया है, जो सेव्ड वाला है। देखो ये सेव्ड वाला इसमें ऑलरेडी है। तो एड्रेस सेव होते हो क्या होगा, नया एड्रेस भी बनेगा और उसमें जो सेव्ड वाला एम्प्लॉय है ना, वो मैपिंग भी हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई रनिंग इट। तो देखो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। इफ यू सी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आईडी एंड नेम, क्यों, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैव अ मैपिंग, पहले था। नाउ एड्रेस टेबल हैव अ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द मैपिंग ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट और आर एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्टी मिलेगा क्योंकि डेटा कुछ नहीं है, ड्रॉप किया था मैंने डेटाबेस, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई हिटिंग दिस, ओके। रिशाल, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली, okay. So you can see we added this employee and then address we stored it, okay. So if we get an employee, you can get an employee as well as address, and if we get a address we'll gonna get a employee in it, okay. तो अभी कौन है रिस्पॉन्सिबल, इज नथिंग बट एड्रेस टेबल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द मैपिंग। तो ये देखो, ये एम्प्लॉय आईडी 1, इसका मैप किधर हुआ, इधर, ठीक है। और एड्रेस बुक का भी आईडी 1 ही है। We got it. Now we're gonna move to the next direction, next bi-directional mapping, which is nothing but join table. Now अभी क्या करूँगा मैं, एम्प्लॉय के अंदर भी उनका मैपिंग नहीं रखूंगा, ना ही एड्रेस का, सेपरेट टेबल बनाना है। तो कैसे करें, ठीक है। तो चलो लेट्स जंप इन टू द कोड अगेन, दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय जो एंटिटी है उसमें क्या चेंज लगेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। व्हाट विल हैव इज नथिंग बट ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। 1-to-1 मैपिंग ये ना यहाँ से हट जाएगा, ओके। बस कैस्केड ऑल रखूंगा। कैस्केड ऑल क्या है ना, वो भी समझाता हूँ, रुको, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा जॉइन टेबल। अभी वी हैव टू जॉइन 2 टेबल्स, ओके। वो टेबल का नाम क्या रहेगा, वी जॉइन एम्प्लॉय table with address, okay. So employee underscore address. Now we'll have join columns, which columns we need to add or we need to join, okay. Equal to, we could have at direct join column name is nothing but employee id reference with comma अरे सॉरी, यहाँ पे जॉइन कॉलम रहेगा। रेफरेंस कॉलम नेम इज नथिंग बट दिस, ओके। ये हो गया एक, कॉमा इन वर्स फॉरेन की इज इक्वल टू जॉइन कॉलम नेम, जो एड्रेस बुक का आईडी है ना उसका दे दो, ठीक है। समझा तो रुको, लेट मी राइट इट, आई एक्सप्लेन इट।
join table, we have this, then join columns, said that we have join column, name, and reference. Inverse foreign key, अम्म, क्या गलत हो रहा है? एक सेकंड रुको। क्या मिसिंग था अपना? ठीक है। तो व्हाट वी हैव इज नथिंग बट जॉइन टेबल। हम लोग दो टेबल ज्वाइन करेंगे विच इज नथिंग बट एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जॉइन कॉलम ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड देन इनवर्स जॉइन कॉलम्स इज नथिंग बट एड्रेस आईडी। ठीक है, इतना चेंज करना पड़ेगा। एंड एड्रेस फील्ड में बोलूंगा यहाँ पे we need to no need to add the join column here. Okay, we no required this. We'll say map by address. Okay, मतलब क्या, एम्प्लॉय ने मैपिंग का देख लिया, ठीक है, पर एम्प्लॉय में भी हम लोग मैपिंग का कैसे रख रहे हैं, क्या वो सेपरेट टेबल में रहे? तो विद दिस जॉइन टेबल विल गोना जॉइन दिस इसका आईडी और एड्रेस बुक का आईडी दोनों मैप करके ज्वाइन करेंगे। तो दिस इज व्हाट नाउ व्हाट विल गोना डू, विल गोना ड्रॉप इट, आई विल शो यू अगेन। ड्रॉप द डेटाबेस और उसमें टेबल्स कैसे बनते हैं ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो और और अपने को ना थोड़ा कंट्रोलर में भी चेंज लगेगा, विच इज नथिंग बट ये मैं ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। व्हाट वी रिक्वायर्ड इज नथिंग बट विल गोना से डायरेक्ट एम्प्लॉय repository डॉट सेव, और बस इतना ही, इतना कर लिया ना, दैट्स इट, चल जाएगा अपना फ्लो। ठीक है, इतना ही फ्लो करने का है, अभी इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय रेपोजिटरी दोनों भी सेव कर लेगा, क्योंकि मैंने मैपिंग के बारे में पूरा बता दिया है इसमें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेट्स ट्राई रनिंग आर प्रोजेक्ट अगेन। ठीक है, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। नाउ लेट्स शो टेबल्स। यू कैन सी वी हैव एड्रेस, एम्प्लॉय एंड देन एम्प्लॉय एड्रेस का टेबल बन गया। ठीक है, वेयर वी हैव एम्प्लॉय के रिलेटेड डेटा, एड्रेस के रिलेटेड डेटा, और एक टेबल बन गया विच इज नथिंग बट एम्प्लॉय एड्रेस, वेयर वी हैव एड्रेस आईडी एंड देन एम्प्लॉय आईडी। ये दोनों मैपिंग करने का काम करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्राई getting all the records. We're gonna get nothing. Here also we're gonna get nothing. Let's try adding record. ठीक है, so now the record has been added. ठीक है, देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेव हो गया और एड्रेस भी सेव हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय रेपोजिटरी से। ओके, क्या देखो अपना कंट्रोलर में क्या लिखा था, वी हैव स्पेसिफाइड ओनली एम्प्लॉय रेपोजिटरी डॉट सेव, पर फिर भी एड्रेस भी स्टोर हो गया। तो सब चीज़ें ये बाई डायरेक्शनल
और क्या बोलते हैं, सेपरेट क्या बोलते हैं, सेपरेट टेबल डायरेक्शन के लिए हो गए, तो ये जॉइंट टेबल की वजह से इट हैज़ बिन पॉसिबल। ठीक है। नाउ इन डेटाबेस, तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अलग से, एड्रेस का रिकॉर्ड अलग से, और मैपिंग किस में है, इन दोनों में। सो एम्प्लॉय ID 1 is mapped with address book ID 1. Okay, let's try adding one more record. Okay, so that थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, test1 से महाराष्ट्र MH, and he had permanent addresses from say Chennai. Okay, so you can see I have two employees. You can see one is Rishal, then second test2. Okay, where address is MH, temporary, permanent, CH. ठीक है, if I fetch addresses, can get address and then along with employee. ठीक है, सेम चीज, एड्रेस एम्प्लॉय। डेटाबेस में दिखा दूँ तो वी हैव टू रिकॉर्ड्स इन एम्प्लॉय, इन एम्प्लॉय टेबल, एंड टू रिकॉर्ड्स इन एड्रेस टेबल। एंड मैपिंग कहाँ पे इन दोनों का, देखो एड्रेस बुक का ID 1 का मैपिंग विथ एम्प्लॉय ID 1 से, एड्रेस बुक ID 2 एम्प्लॉय ID 2, तो ऐसा मैपिंग हो गया दोनों के बीच में। सो या that's it. If you have any more doubts, so you can drop me a comment, or you can connect with me in Instagram. I'll mention my Instagram link in description below. ठीक है, thank you everyone.